So today we will see the mean free path. Uh, the idea behind is that okay. So mean free path. All right. So if you see, हमने देखा था कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, especially we have seen for ideal gases that those ideal gases has three typical velocities: vrms, vrms, and v average, and v most probable. So if you see these numbers now, if you see in the real life, uh, suppose if you take oxygen gas and you calculate the average velocity of that oxygen gas molecule, so you will find them around 400 to 500 meter per second. Look at these numbers: 400 to 500 meter per second. This is a very high speed. I mean, if you see the speed of sound in air is around 340 to 345 मीटर पर सेकेंड, तो उससे भी ज़्यादा स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स की in average temperature, like room temperature you can take. So but still उसके बाद भी if you see, suppose if you take an example, अगर हम कोई गैस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रिलीज़ करते हैं, सपोज़ वी आई यूज़ अ परफ्यूम, और सपोज़ मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, तो मैं सपोज़ अब मैं अपने कमरे के एक कोने पर एट अ कॉर्नर ऑफ रूम आई एम इग्नाइटिंग वन some I'm using some perfume and try to spread that gas molecules in the environment. तो जैसे ही मैं परफ्यूम वहाँ पर छिड़कता हूँ, तो आई डोंट स्मेल इट इमिडिएटली सिटिंग एट सम अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, राइट. अगर मैं किसी एक कॉर्नर के रूम के कॉर्नर पर किसी परफ्यूम को छिड़कता हूँ, तो मुझे इमिडिएटली खुशबू नहीं आती, राइट. बट अगर मैं एक कॉर्नर पर बैठा हूँ और दूसरे कॉर्नर पर कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ है, अगर वो वहाँ से कुछ बोलता है, साउंड निकालता है, या फिर कुछ और साउंड आती है, जैसे अभी चिड़िया की साउंड आ रही है, तो वो चिड़िया मेरे से मे बी 10 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है, स्टिल आई कैन हेयर इट इमीडिएटली, राइट. जैसे ही वो वहाँ से आवाज़ आती है, वैसे ही मैं उसको सुन पाता हूँ यहाँ पे. बट ऐसा गैस के केस में नहीं होता, गैस पार्टिकल के केस में नहीं होता. और हमने देखा कि स्पीड जो है गैस पार्टिकल की नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर, इज़ हाइयर देन द स्पीड ऑफ साउंड, बट स्टिल वो नहीं पहुंच पाती हमारे पास. क्यों? सो फ्रॉम दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ अकर्स. क्योंकि देयर इज़ ओके, सो वी सी दैट since molecule or the particle of gas, since the molecule of the gas have molecules of the gas have a finite, though small volume, भले ही बहुत छोटा वॉल्यूम है, बट होता है वॉल्यूम, राइट. Although we have assumed that in the ideal gas these are point particles, they don't have any volume, but in reality they have volume, भले ही वो बहुत छोटा हो, बहुत minute volume हो. So what happens that due to that very small volume, what happens in reality, we get the collision, right. Because when they moves in that whole gaseous medium, right, they will collide. of आपस में दो या तीन molecules आपस में collide करेंगे, right. there are like billions of molecules around a particular molecules. So अगर उनके पास एक volume है, suppose you can take it like a balls, right. इमेजिन करने के लिए, अगर बहुत सारी बॉल्स है और सब मूव कर रही हैं, तो दे विल कोलाइड. ऑफ कोर्स इट्स too obvious, right. They will collision will happen. So we can write that then
as molecule moves, collision will occur, right? Of course collision will occur. So अगर collision occur होगा तो फिर क्या होगा? Collision will occur, therefore thus velocity will change, right? Velocity will change, and when I am saying velocity will change, meaning the direction and the magnitude both will change, right? आपस में कोलाइड करेंगे. So that is why due to this collision it takes longer time than the expected time. ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ पर कोई गैस पार्टिकल थे और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था तो दे आर गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. नो, देर आर बिलियंस और trillions of molecules inside between the medium, so they have to cross them all. Then they come after some time. Get it? Yeah. So that is the crux जहाँ से ये अब मीन फ्री पाथ का हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा. Okay. So first of all, why do we call it mean, and then why do we call it free? The path is straightforward. path का मतलब कि वो the trajectory कि वो कैसे चल के आ रहा है. Okay. So first of all we will see that जब तक okay, let me draw some molecules. थोड़ा वहाँ से easy पड़ेगा to show you a picturized form. So these are the molecules of the gas particles or even atoms or whatever you want to take it. So you can see that suppose I'm just focusing on this particle, this one, it can move like this, then this, random collision. Nobody knows that where it is going to be, right? So if you see until and unless there is a first collision, so suppose think in this way, जब तक कोलिजन नहीं हुआ था तब तक पार्टिकल्स जो गैस मॉलिक्यूल्स थे दे वर फ्री. आई मीन देयर वाज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि दैट वाज देयर बट इट वाज नेग्लिजिबल. ओके, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. जब तक डिस्टेंस बहुत क्लोज ना हो so that mutual force will not act. So as long as there is no collision तब तक कोई force नहीं है. That is why we call it free. It is free to move between the collision. Until the collision happen, the particles are free to move. Okay, so that is why it is called free. And so first we will see the definition of free path. Okay, so we can write the path traversed by a molecule between two successive collisions is called free path. ओके, तो मान ले पहला कोलिजन यहाँ पर हुआ. अब दूसरा कोलिजन होने से और पहला कोलिजन होने के बीच में जितना भी उसने टाइम, सक्सेसिव का मतलब वन आफ्टर अनदर. सो पहला कोलिजन मान लें यहाँ पर हुआ इसका, और ये दूसरा कोलिजन यहाँ पर हो रहा है. तो ये जो पाथ है ना, दिस इज़ कॉल्ड फ्री पाथ. एंड यू कैन सी दैट यू कैन see that because there is no any force, there is no force, no in mutual force about the molecular between the particles. This is straight path. This is straight line motion, right? Okay.
which is straight line, better to write in this way, which is straight line. यहाँ पर sentence खत्म होता है. Now you can simply realize this thing that कि of course अब ये particle जो है ये ऐसे जब collide करेगा तो it is performing a zigzag motion like this, zigzag motion. Okay, I mean this random motion is called zigzag. It is a technical term. Or you can see that it will collide multiple times, right, with the particles surrounding it. Okay, and the path is going to be sometimes the path will be very small, sometimes it will be very big compared to the previous one. So ये ऐसा तो है नहीं कि ये line जो ये path है जो distance है it is going to be fixed for each collision, right? It is going to differ. So that's why we need to take mean, the average one. Mean means here average, so that's why we use the word mean. Okay, so now we have the definition of this for the definition of free path, and the mean free path is mean free path. It is denoted by lambda. A mean free path of a molecule is the average distance. Remember, average distance, this average is important, traversed by it between two successive collision. Okay, so this is the mean free path. If you see, there is no difference between this and this definition apart from this average distance. Okay, it was just the path traversed, it is the average distance. Fine, I think the definition part is clear. Now we want to know that how or on which parameter of a gas this lambda depends. Okay, or on which thermodynamic variables this lambda depends, that we want to see. That is the expression for the mean free path. Okay, fine. So suppose this is your lambda 1. Okay, in this zigzag motion, suppose this was your lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, and so on. Okay, so अगर मैं यहाँ से इस definition को use करके if I want to know the formula, so what will be this formula? क्योंकि हमें एवरेज लेना है, तो मान लो हम टी टाइम तक हमने पूरा सिस्टम को ऑब्जर्व किया है टी टाइम तक. ठीक है, सो लैम्डा विल बी डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी. ठीक है, डेफिनेशन को बार बार पढ़. मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय इट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. मतलब एक कोलिजन के बीच में जितना भी टू सक्सेसिव का मतलब क्या है, टू का मतलब सक्सेसिव का मतलब है कोलिजन, तो एक ही बार जो कोलिजन हो रहा है उस डिस्टेंस को लेना है, और वो एवरेज डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम टी. ओके, तभी तो एक का निकलेगा जब सारे से डिवाइड करेंगे. दिस इज़ द एवरेज, है ना. तो मान ले डिस्टेंस ट्रेवर्स इन टाइम टी वॉज, सपोज लेट्स टेक इट फॉर्मूला, सपोज इट वॉज कैपिटल डी and the number of collision was, suppose it was small, capital N. So this will be the answer for D by N. Now we want to find what is D and what is N, and we will put those two quantities in this equation, and we will get the value of mean free path. Okay, so the elementary treatment क्या था, मतलब जब बहुत
पहली दफ़ा इसको समझा गया लोगों के द्वारा। तो एलिमेंट्री ट्रीटमेंट वाज वेरी सिंपल। तो उन्होंने क्या माना कि सपोज़ यही इसी गैस को हम ले लेते हैं मान लो। तो इसने क्या माना कि सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट पर हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लैक वन। ओके, देर आर सपोज देर आर n number of particles, capital N number of particles. Forget about this n now. I'm just giving you a new हम यहाँ से कुछ नया करने वाले हैं, तो वो डेफिनेशन बाद में देख लेंगे। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट सपोज इस पूरे गैस पार्ट ये किसी कंटेनर में था, इट इज़ बेटर टू पुट अ कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में एक गैस फील्ड है एंड let the number density of gas is small n। नंबर डेंसिटी का मतलब n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। This is the density that I am talking about, huh? So now the ये जो derivation है it is simply written as like n/v ऐसे। तो जो ये derivation है वो assume क्या करता है पता है? ये assume करता है कि suppose ये जो black particles है that is only moving and all the other particles are frozen, मतलब वो फिक्स्ड है, जो कि रियलिटी में होता नहीं है, इसीलिए इसको एलिमेंट्री ट्रीटमेंट बोला गया है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, रेड वंस आर फिक्स्ड एंड द ओनली ब्लैक पार्टिकल इज मूविंग। ओके, तो इसको तो लिख भी सकता है एंड डेरिवेशन करते वक्त इमेजिन दैट एट सर्टेन इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर हम पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्सेप्ट वन ब्लैक वन आर एट रेस्ट। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। And the black particle or molecule is moving with average velocity, that is v bar। okay, average velocity with v bar। now question comes कि average क्यों लिया? we could have taken that thing also, VRMS also, but it is not that much different from I mean the numbers do not differ and जो फाइनल फार्मूला आएगा अगर तुम उस फार्मूले में VRMS भी डाल या V एवरेज भी डाल, दोनों आंसर्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं। तो पीपल टेक V एवरेज इन जनरल, आई मीन कन्वेंशनली इन द बुक्स। ओके, फाइन। आफ्टर दिस assume that and take the diameter of the molecule is d, small d suppose, right? तो अब देख, जब ये कोलिजन हो रहा होगा, मान ले ये पार्टिकल था मेरा, मैं अभी इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है, जूम इन कर रहा हूँ, ये मेरा ब्लैक पार्टिकल था जो मूव कर रहा था, ठीक है, जिसका
रेडियस था स्मॉल डी, और द मोमेंट इट कोलाइड्स विद द रेड पार्टिकल एनी ऑफ द रेड पार्टिकल जो रेस्ट पर है, तो इसका भी रेडियस स्मॉल डी है, तो द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स विल बी 2d. No, it's d only, right? The diameter is d, so it will be d by 2 and it will be d by 2. So the center to center distance is d by 2. Okay, so we can write center to center distance of colliding molecules is d. फाइन. अब मैं इसी सिचुएशन को अज्यूम कैसे कर सकता हूँ? देख, पहला एजम्पशन तो ये था कि ये मूव कर रहा है और बाकी के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पर है. ये फिजिकल एजम्पशन था. अब दूसरा एजम्पशन ये लिया जाता है कि सपोज कर ले कि दिस ब्लैक पार्टिकल is this black particle is the radius of black particle, rather, if like in this way, if the radius of black particle is increased to d, राइट. पहले रेडियस क्या था? d by 2, बट अभी हमने क्या कर दिया? हमने इसके रेडियस को डबल कर दिया, दैट इज d. ओके, एंड the molecules at the rest are shrunk. I mean, हमने उनको shrunk कर दिया, shrunk to points. I mean just geometrical points. Okay, तो अब देख, ये यहाँ इस चीज़ को मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ दूसरे तरीके से. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओके, जो पहले ये था ऐसे, अब इसको मैं कैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना बड़ा लेकर के, इतना बड़ा डी रेडियस का मैंने सर्कल ले लिया है, लाइक दिस. ओके, इतना बड़ा. तो इस केस में भी अब देख, तो ये जो, अगर इस वाले मॉलिक्यूल को देख, ब्लैक, अगर मैंने ब्लैक वाले मॉलिक्यूल को मैं ऐसे अज्यूम करूँ, और ये जो रेड मॉलिक्यूल था इसको मैं पॉइंट अज्यूम करूँ कहीं पर भी, तो उस केस में भी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था पहले, वो कितना था? पाई डी स्क्वायर. अभी भी कितना बनेगा? पाई डी स्क्वायर बनेगा. ओके, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर कि जब ये पार्टिकल्स हमने ऐसे अज्यूम किए थे, तो यहाँ पर अभी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? कोलिजन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी d. तो ये जो एक इफेक्टिव एरिया था जहाँ पर ये टकरा रहे हैं, दैट विल बी पाई डी स्क्वायर, राइट. इस रीजन में टकरा रहे हैं, इस रेडियस के रीजन में टकरा रहे हैं, पाई डी स्क्वायर. बट अगर मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूँ कि मैं ब्लैक पार्टिकल्स का रेडियस डबल कर दूँ, और जो ये जो रेड पार्टिकल्स हैं उनको मैं पॉइंट पार्टिकल मान लूँ, उनका मैं बिल्कुल उनको रेडियस 0 कर दूँ, तो उस केस में भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो भी पाई डी स्क्वायर होगा. ओके, सो वी कैन राइट, so the effective, better to write effective cross sectional area of moving black particle
ब्लैक मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया है, यू डोंट नीड टू राइट ब्लैक एटम, ठीक है। सो द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्लैक पार्टिकल, और इसको बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ठीक। मतलब जिस रीजन में कोलिजन हो रहा है उस रीजन का टिपिकल एरिया क्या है उसका, आई मीन टिपिकल मतलब उस रीजन का इफेक्टिव एरिया क्या है। अगर उसको मैं रो से डिनोट करूँ, सो डैट रो विल बी पाई डी स्क्वायर, ओके, ठीक। नाउ और ध्यान देना कि इस पिक्चर में ये इसको तो मिटा सकता है। अभी हमने इसको क्या मान लिया है, बड़े पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल को बड़ा 2D डायमीटर का, यानी या फिर बोल सकता है D रेडियस का हमने मान लिया इसको, ओके, D रेडियस का हमने इसको मान लिया। तो और जो बाकी पॉइंट्स थे रेड पॉइंट्स, वो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं पर आ रहा है, कहीं पर भी मान सकता है उसको ऐसे। ये रेड पॉइंट है, अभी रेड पॉइंट मतलब रेड पार्टिकल है, उसका कुछ एरिया नहीं है, उसका कुछ रेडियस नहीं है, कोई एरिया नहीं है, उसको हमने पॉइंट पार्टिकल मान लिया है। तो हर एक इसको ऐसे मान सकता है कि तो हर एक जो डी रेडियस का बड़ा पार्टिकल है, ब्लैक पार्टिकल, वो एक रेड पार्टिकल के साथ टकरा रहा है, एक कोलिजन हो रहा है उसको। यानी कि जो ये पिक्चर था, यहाँ पर एक ब्लैक पार्टिकल एक रेड पार्टिकल से टकरा रहा है, तो ये पिक्चर को तो हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक बड़ा पार्टिकल जो 2D रेडियस का था, वो छोटा मतलब बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल के साथ टकरा रहा है, ओके। अब हम देखेंगे कि ये T टाइम्स में कितने ऐसे पार्टिकल्स आ जाएंगे। सो इन एन इंटरवल T, टाइम इंटरवल T, द मूविंग पार्टिकल, ये मूविंग पार्टिकल विल ट्रैवर्स, कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स करेगा, विल ट्रैवर्स डिस्टेंस इक्वल्स V बार T, V एवरेज T, राइट। और एंड it will sweep out a cylindrical volume, sorry, ठीक है, during this zigzag motion, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब उसने यहाँ से जब उसने स्टार्ट किया, तो T टाइम बाद अभी इसको हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि सिलेंड्रिकल एरिया बनाएगा, क्योंकि वो ऐसे मूव करेगा जब, ओके वेट बेटा, दिस वन एंड लाइक दिस, ओके। तो T टाइम में उसने इतना वॉल्यूम कवर कर लिया, ठीक है। एंड इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी पॉइंट पार्टिकल होंगे रेड वाले, वो उन सब से टकराया होगा ये ऐसा हम इसको इस तरीके से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम कर सकते हैं इन द सेंस कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि हमने बोला कि हर एक ये बड़ा सर्कल एक पॉइंट पार्टिकल से टकरा रहा है। तो आप तो समझ सकता है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट पार्टिकल होंगे वो सब टकराए होंगे, तब जाकर ये सर्कल यहाँ तक पहुँचा होगा, लाइक दिस। सो अब हम देखेंगे कि इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट पार्टिकल थे, सॉरी इस वॉल्यूम के अंदर कितने पॉइंट पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो so let me write that thing, this black particle or the moving particle, black particle will collide in time T
with all the particles, that is important, all the particles having their centers within this volume. Okay, within this volume. एंड ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे? हमने बोला कि इस वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, हमें डेंसिटी पता है n. सो सच पार्टिकल्स आर number of such particles are nothing but density into volume. डेंसिटी n है और इसका वॉल्यूम क्या है? हमने बोला कि हमने देखा था कि इसका जो रेडियस है दैट इज़ d, और ये डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल कर रखी है वो कितनी है? v बार t. सो द वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ द बेस इनटू दिस थिंग vt, right? So it will be n times n is the number density and the volume will be pi d square v bar t. ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और इतने कोलिजन भी होंगे, राइट? देयरफॉर क्योंकि हर एक पार्टिकल के साथ तो कोलिजन कर रहा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t इक्वल्स n pi d square v bar t. सो इफ़ यू सी हमारा जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पर इक्वेशन 1 में, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t. ओके, एंड व्हाट वाज द न्यूमरेटर वाज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, विद दैट वी आल्सो नो डिस्टेंस कितने कवर कर रखी है, v bar t, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, राइट? एंड distance covered in time t is v bar t, right? So therefore the lambda is equal to nothing but number of collision in time t divided by distance covered in time t. Fine. So you can just divide these two terms, right? It will become lambda equal to n pi d square v bar t upon v bar t. So v bar t and v bar t will cancel out. Okay, sorry, it was reverse, मैंने गलती कर दी. It was like ये नीचे था और ये ऊपर था. डिस्टेंस कवर्ड ऊपर है और ये नीचे है, तो it was like this. Okay, hence the lambda is nothing but 1 upon pi n d square. But this is the elementary treatment, like I said initially, जब पहली दफ़ा लोगों ने सोचा था कि कैसे कैलकुलेट करें, so this was the elementary treatment by elementary treatment. But there are corrections, बाद में जो बाकी लोग आए इन्होंने करेक्शन की, तो there are two corrections in this formula. They have used other methods but we don't need to discuss them right now. So the पहला correction था वो same scientist that name you have already heard, Clausius expression. बस फ़र्क कुछ नहीं आता. This ना if you see 1 upon n d square, so this n is the property of gas and this d is the radius of the gas molecule, but the pi is the constant. This constant gets changed only. This constant gets changed. So in case of Clausius, this constant is nothing but 3 upon 4 pi. Okay,
यहाँ पर सिंपली 1/पाई था, इस केस में 3/4 पाई है. एंड द सेकेंड करेक्शन इज मेड बाई दिस थिंग, आवर ग्रेट मैक्सवेल्स एक्सप्रेशन. ये मोस्टली पीपल यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन इन द इन रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. सो इसका जो आता है वो आता है √2 पाई, 1/√2 पाई एज अ कांस्टेंट. सो दिस वन third one is used mostly for the calculation. Okay, fine. So I think this derivation part is little bit new for you, because हमने कुछ नए assumptions लिए यहाँ पर जो थोड़ा सा इतनी जल्दी डाइजेस्ट करना आसान नहीं है. सो लेट मी रिपीट इट वंस मोर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि फॉर्मूला कैसे आया. ये फॉर्मूला ग्रेस्प करना इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वंस इट इज़ डन देन आगे का कहानी आसान हो जाती है. तो हमने देखा कि हमने माना कि जो पार्टिकल का डायमीटर है वो d है और रेडियस d/2 है. तो जब ये कोलाइड कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स जो ये कोलिजन का क्रॉस सेक्शन है, जिस क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया जिस रीजन में वो कोलाइड कर रहे हैं, वो एरिया ऑफ रीजन का जो डायमीटर है वो d है. तो एरिया को हम πd² ले सकते हैं रफली. ओके, तो हमने ऐसा माना कि चलो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि एक जो मूविंग पार्टिकल है वो मूविंग पार्टिकल इस बड़े इस दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया कोलिजन क्रॉस सेक्शन जो था उस वाले क्रॉस सेक्शन का हमारा एक बड़ा पार्टिकल है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर हमने देखा कि टाइम t के बाद ये जो बड़ा क्रॉस सेक्शन है वो मूव कर रहा होगा, तो वो ऐसा एक सिलेंडर बनाएगा, और इस सिलेंडर के अंदर जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आ रहे होंगे तो वो कोलाइड करेंगे. तो हमने देखा कि कितने पार्टिकल्स थे, इतने पार्टिकल्स थे, और इतने ही पार्टिकल कोलाइड कर गए t टाइम में, और डिस्टेंस इतनी कवर कर रही. इफ़ यू डिवाइड दोज टू थिंग्स वी विल गेट दिस थिंग. बट सिंस ये हमने बहुत ख़तरनाक अजम्पशन ले लिया था कि भाई पार्टिकल्स एकदम बाकी पार्टिकल्स आर फ्रोजन, एकदम फ्रीज कर गए हैं, वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं. सो दिस इज़ वाई वी गेट not correct answer, but still we are too close to the correct answer. So after that, two scientists came, they give more explanation, better explanation. So this is the mostly accepted explanation or accepted expression for Maxwell for the mean free path. Okay, so this is how the calculation is. But अगर मैं थोड़ा तेरे को इंट्यूशन से समझाऊँ, थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों से समझाऊँ, तो आसानी से तो समझ सकता है. मान ले, और ध्यान देना कि ये d क्या है n क्या है, ये याद रहना चाहिए. ओके, सो खुद एक बार तो खुद सोच, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं. राइट, याद कैसे रखें इस फॉर्मूले को. मान ले यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं. तो खुद सोच, अगर पार्टिकल लुक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लैम्डा. लैम्डा इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस है कि पार्टिकल कितना दूर तक चल सकता है. ध्यान दे, अगर पार्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो उस केस में ऑफकोर्स जो है तुम्हारा ये दिस थिंग, अगर साइज़ बड़ा है तो ऑफकोर्स वो जल्दी टकराएंगे आपस में. अगर छोटे छोटे हों तो उनको टकराने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है. अगर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी टकराएंगे. अगर बहुत जल्दी टकराएंगे तो मीन फ्री पाथ कम होगा. राइट, मीन फ्री पाथ ज़्यादा कब होगा, जब बहुत देर में टकरा रहे हैं, बहुत देर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद टकरा रहे हैं. तो ऑफकोर्स लैम्डा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, और साइज़ को हम बोल रहे हैं वॉल्यूम 4πd². डी हमने उसका रेडियस लिया है. ओके, सो लेट रेडियस ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज डी. तो जितना बड़ा साइज होगा उतना कम मीन फ्री पाथ होगा, पहली बात. दूसरी बात, अगर गैस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत छोटे वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं. डेंसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो तब भी पार्टिकल बहुत जल्दी टकराएंगे. ठीक है, अगर पार्टिकल बहुत जल्दी टकराएंगे तो अगेन
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू डेंसिटी के, राइट, नंबर डेंसिटी के। और नंबर डेंसिटी क्या होती है हमारी, n अपॉन v। फाइन, ओके। सो अब अगर इन दोनों टर्म्स को तू इक्वेट करेगा तो क्या है, मतलब मर्ज करेगा तो क्या आएगा, 4 पाई एन डी स्क्वायर, ओके। एंड अगर तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएगा तो ये पाई एन डी, ये अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर लिख सकता है सिंपली। ये जो मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, जो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ये तो एन डी स्क्वायर तो फिक्स है, बट ये जो 4 पाई रूट 2 पाई बन जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, फील के साथ इसको तो रिमेंबर कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज okay, so now we know the formula for lambda, that is 1 upon under root 2 pi n d square. Remember, d is the radius of molecule and n is the number density of gas, okay. इट इज़ नॉट नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान देने में मिस्टेक होती है बहुत बार। नंबर डेंसिटी ऑफ गैस, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। नाउ बाय द वे, नाउ इफ यू गो फॉर आइडियल गैस, we are trying to use this in ideal gas cases. You know that for ideal gas PV equal to nRT, right? But you know that the Boltzmann constant Kb, that is defined as this R upon Avogadro number. I don't know you know this thing or not, but you should know this thing, since this thing is this. And now if you put from here, implies that R equal to Na times Kb, okay. तो ये आइडियल गैस क्या बन जाएगी इक्वेशन, n is n and R will become Na times Kb, okay, times T. So what is this small n? Small as n is the number of moles here and Na is the number of Avogadro number, okay. यानी कि ये है एक मोल में कितने एटम्स हैं और ये है n नंबर ऑफ मोल्स। सो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, राइट, कैपिटल N टाइम KBT. So this is the ideal gas equation in terms of number of particles, and this is the ideal gas equation in terms of number of moles. Remember, here small n is number of moles of the gas, or here capital N is the number of particles or molecules. तो आइडियल गैस इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं इन जनरल, फाइन। तो अगर अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, and n is the number of particles per unit volume. So small n we can write capital N by V. We will go to the numerator. Okay. Now, if question is that, if number of particles are fixed, okay. If number of particles are fixed, then lambda is proportional to V. Okay, lambda is proportional to V. पहला पॉइंट है, हमें देखना था कि लैम्डा कैसे चेंज होता है वॉल्यूम के साथ, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि सिंस पी वी इक्वल टू एन के टी के बी टी, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एन के बी टी बाई पी, राइट, एंड पुट दिस इन द इक्वेशन नंबर 1 सपोज. So this lambda will become nkbt upon p 2 pi nd square p, and this n cancel out. So essentially lambda is proportional to
टी अपॉन पी। हमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डिपेंडेंस देखना है, तो मैं कांस्टेंट को हटा रहा हूँ. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, क्योंकि ये देखेगा तो ये दो पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है, राइट, दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, टी और पी पर. तो अगर एक को फिक्स करेगा तब जाके ही चीज़ें बदल सकती हैं, हम बता सकते हैं. तो पॉइंट ये है कि ये पॉइंट 1 था. पॉइंट 2 है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ फिक्स्ड, ओके, ये कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, दैट इज़ V इज़ फिक्स्ड, V इज़ कांस्टेंट. तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से क्या आएगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी से क्या आएगा, अगर V फिक्स्ड है तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू T, ओके, P इज़ प्रोपोर्शनल टू T. तो इसका मतलब P अपॉन T इज़ कांस्टेंट, राइट, क्योंकि जितना P बढ़ रहा है उतना T भी बढ़ रहा है, तो यानी कि P अपॉन T इज़ कांस्टेंट. देयरफॉर दिस लैम्डा इज़, आई मीन अगर P अपॉन T कांस्टेंट है तो T अपॉन P भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर. इफ़, लेकिन कब, ध्यान देना, इफ़, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज फिक्स्ड. फॉर आइडियल गैस, गैस इज आइडियल गैस, ध्यान देना, द वॉल्यूम ऑफ, इट इज इम्पॉर्टेंट, आइडियल गैस इज फिक्स्ड. मतलब इसको तो ऐसे अज्यूम कर सकता है कि कोई कंटेनर था, कि अगर एक बार कंटेनर बना दिया तो कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो अब गैस इसके जो अंदर है उसका वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, राइट. अगर कंटेनर फिक्स हो गया वॉल्यूम V का, तो अब इसका जो भी तुम कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, कितना भी इसका तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, लेकिन ये लैम्डा है, लैम्डा इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है डेट इज़ गोइंग टू फिक्स, और लैम्डा डिपेंड कर रहा है रेशियो पे, तो इसीलिए फिक्स रहेगा. और अगर वॉल्यूम फिक्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी फिक्स है. हाँ, V और N दोनों फिक्स है. इस केस में क्या फिक्स था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स थे, ध्यान देना. तो जब भी ये डिपेंडेंस बताई जा रही है, कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पर कैसे मीन फ्री पार्ट डिपेंड कर रहा है, तो यू नीड टू गिव दिस कंडीशन. क्या कंडीशन है, क्या चीज़ फिक्स्ड है ऑलरेडी. जैसे यहाँ पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स थे, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स थे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं. वो उनको लगता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये, क्योंकि ये अगर तू इसको देखेगा तो ये लगता है कि भाई प्रेशर बढ़ेगा तो ये घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा. नो, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों बराबर रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दोनों को, ओके. एंड दीज टू आर थिंग्स. एक छोटे से पॉइंट्स एक आदि और हैं, कि अगर तुझे लैम्डा पता है तो देयर इज़ वन मोर क्वांटिटी कॉल्ड कोलिजन टाइम. कोलिजन टाइम इज़ नथिंग बट टो इज़ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज़ लैम्डा, और ये V एवरेज. इसको तुम कोलिजन टाइम निकाल सकते हैं, टाइम कितना टाइम लगा एक कोलिजन में, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल्स किया, बट कितना टाइम लगा वो इतना हो जाएगा सिंपली, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और इतना उसकी स्पीड थी. सो इफ़ यू पुट दिस फॉर्मूला तुम लैम्डा का फॉर्मूला डाल सकता है यहाँ पर, तो वो आंसर निकाल सकता है. और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑल्सो यूज्ड इन मैनी टाइम्स. कोलिजन फ्रीक्वेंसी nu, it is nothing but the inverse of the collision time. These are very trivial things. Okay, so I think this is how whole this thing completes. Mean free path completes at this point. But the most important part, derivation, तो ठीक है, derivation is you can remember then, because derivation is something like somebody has put years to derive something, and
तुम उसको एकदम से याद नहीं मतलब उसको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो यू कैन रिमेंबर कि कैसे डेरिवेशन किया। बट दिस डिपेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, यहाँ पर बहुत लोग फंसते हैं। सो आई थिंक यू शुड डू द सम practice problem from that book that I have suggested you. Apart from that, maybe some questions I can also do. Let me see if I can see some questions on this. But remember few more points. I think you will make some mistakes here कि देख लैम्डा का जो फॉर्मूला है ना वो V/N के फॉर्म में ऐसे है, और टेम्परेचर प्रेशर के टर्म्स में ऐसे है। मैंने लिखा नहीं है बाय द वे, बट यू कैन राइट इट कि इट इज़ लाइक KB टाइम्स T अपॉन √2π d²P। सो इसका मतलब जो हमने ये वाला निकाला है ना यहाँ पे कि लैम्डा इज इंडिपेंडेंट, ये एक पर्टिकुलर केस में है। लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, ये एक पर्टिकुलर केस में। वो केस क्या है कि जब वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर इन जनरल बात की जाए तो लैम्डा जो है, लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू T एंड लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। बट ये इन जनरल है। बट अगर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि वॉल्यूम फिक्स कर दूँ या कुछ और फिक्स कर दूँ, देन यू हैव टू सी ऐसे यू हैव टू सी इन दिस वे। सो इन दिस केस दैट विल बिकम इंडिपेंडेंट, राइट। क्योंकि जो PV = nRT जो इक्वेशन है उससे हमें पता चलता है कि ये तीनों के तीनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी एक को हमने फिक्स कर दिया तो बाकी के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा। बट इन जनरल अगर कोई कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ चेंज हो सकता है, तो यू नीड टू सी दैट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू V फ्रॉम हियर, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू T फ्रॉम हियर, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फ्रॉम हियर। दिस इज इन जनरल, राइट। सो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हाउ द मीन फ्री पार्ट डिपेंड्स ऑन these variables, so you can write lambda is proportional to V, lambda is proportional to T, lambda is proportional to 1/P, right, inversely proportional to P. So these are in general. बट अगर कोई फिक्स्ड चीज़ दे दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स कर दिए, हाँ, और यहाँ पर तो ये भी देख सकते हैं कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो मैंने लिखा नहीं, तो देयर आर 4 डिपेंडेंट्स। हाँ, मैं उनको लिख देता हूँ साफ लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इन जनरल लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू V, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N, lambda is proportional to T, lambda is inversely proportional to inversely proportional to pressure. This is in general. और कैसे हमें पता चला? हमें इक्वेशन से पता चला। इक्वेशन से कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू 1/√2π d²N एंड N इक्वल टू नथिंग बट N/V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई V, ठीक है। तो यहाँ से दिख गया कि प्रोपोर्शनल टू V, inversely proportional to N. Now just put the value of this thing V, ideal gas equation, PV = nRT, so V = PV = KB NKBT, so this will become KBT by √2π d²P। तो यहाँ से क्या दिखेगा तुझे? प्रोपोर्शनल टू T, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये इन जनरल है। बट अगर उसने क्वेश्चन में देखना कि कुछ फिक्स तो नहीं कर दिया उसने, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ फिक्स कर दिया या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स कर दिए, तो थोड़ा तुझे फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करके थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके।